Hello friends, welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. Today is day 12 and today we'll be looking at some of the portions of paper 3, specifically agriculture. In recent time, agriculture is the most burning topic and it is very important for mains 2020. We'll be looking at what are the various contemporary issues of agriculture portion and we will be taking a question on फार्म बिल ऑर्डिनेंसेस 2020. ठीक है, जो फार्म बिल आया है लेटेस्ट और जो कन्वर्ट हो गया है एक्ट में, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे एंड विल ट्राई टू लुक एट हाउ वी कैन राइट अ गुड आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. So if you look at today is day 12, paper 3, agriculture portion, and the topic we have taken is from farm ordinances 2020. So there was a series of ordinances which came in 2020. ठीक है, we'll be looking at what were they, what is the brief background of farming, agriculture and the culture of agriculture in India, and how agriculture commodities are being marketed and being sold by the farmer. So let's start by having a brief outlook on the background. So if we talk about the present case of agriculture activities in India is, let's suppose a farmer is here. A farmer takes his produce and give it to the village merchant. This village merchant aggregates the produce and then takes it to the APMC Mandi. ठीक है, this APMC Mandi is a framework which is given as a model act by the center, and states will be doing and propounding their own state APMC act. So APMC Mandis are under the APMC act. Okay, so in APMC Mandis there is presence of middlemen, there is presence of brokers, and while selling the produce of the farmer, he or she also needs to give what? Mandi fees. So this is a basic thing, and then this produce is then carry forward to the wholesaler, and then the wholesaler give it to retailer, and from retailers we individuals purchase. So this is a brief supply chain of how from farm to fork the things progress. ठीक है, so the concept called farm to fork. तो जो प्रेजेंट केस के अंदर कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर फार्म से फोक तक प्रोसेस क्या रहता है? फार्मर, विलेज मर्चेंट, एपीएमसी मंडीज, ठीक है, आर बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एपीएमसी एक्ट. ठीक है, स्टेट का अपना अपना इसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसमें मिडलमैन्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इसमें मंडी फीस लगती है वाइल यू आर सेलिंग द कमोडिटीज़. देन दिस एंटायर थिंग इज ट्रांसफर टू द होलसेलर एंड देन होलसेलर ट्रांसफर इट टू रिटेलर एंड देन वी परचेज एज सिटीजन्स. Now if we talk about what was the farm ordinances 2020, ठीक है, फार्म ऑर्डिनेंसेज जो आए हैं 2020 में, जिसके लिए वी हैव सीन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन द कंट्री. ठीक है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. तो उसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या प्रोविजंस थे, विल लुक एट. तो इसमें फार्म ऑर्डिनेंस एक्ट के अंदर या ऑर्डिनेंस के अंदर देवर 3 ऑर्डिनेंसेस. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेंस क्या था? इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. ठीक है, फर्स्ट था इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है, ये करता है, इट प्रोवाइड्स एन अमेंडमेंट टू द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और ये करता है जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, वॉट एवर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इट रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट. ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल वॉन्ट बी देयर इन द इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट. ठीक है, तो दिस ऑर्डिनेंस गिव दिस थिंग इन एक्शन. ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं अब उसको हम रिमूव कर दिए हैं. कहाँ से? इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो लिस्ट होती है उससे हमने रिमूव कर दिया उसे. सेकंड क्या है? इट इज़ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020. अब इसके अंदर क्या है कि देर इज़ क्रिएशन ऑफ, दिस ऑर्डिनेंस helps in creation of what? Trading zones या trading areas. ठीक है, and it also allows what? Both inter plus intra within states and in between the states, both it allows inter and interstate trading and agri commodities का buy purchase. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इंटरस्टेट्स, विद इन द स्टेट्स and within a state, both these trading activities in agriculture commodities can be simplified. ठीक है, तो ये प्रोसेस कर दिया है इंटर और इंट्रा बेसिस पे. थर्ड जो है दैट इज़ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज. अब जब क्या है, देर इज़
दिस ईजी मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्लस क्रिएशन ऑफ ट्रेडिंग एरियाज, तो यहाँ पर क्या होगा, देर विल बी मोर इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, अब APMC वाला एक्ट को क्या है कि हमने थोड़ा सा क्या है डाइल्यूट कर दिया है, उसकी जो प्रायोरिटी थी उसको सेकेंडरी कर दिया है। हमने जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को क्या है कम कर दिया है। तो देयर फोर मोर प्राइवेट प्लेयर्स विल come into action, and therefore these private players will be coming in a contract with farmers, and therefore this particular ordinance provide a enabling environment and legal framework for कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, तो पहला क्या है कि एग्री कमोडिटीज़ को क्या है कि हमने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर से निकाल दिया है। सेकंड, देयर इज़ नाउ क्रिएशन ऑफ ट्रेडिंग एरियाज वेयर देयर इज़ ज़ीरो टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है ज़ीरो टैक्सेस लगेंगे। और APMC जो भी मंडीज़ थी वहाँ पर क्या है मंडी फीस नीड्स टू बी पेड, तो यहाँ पर क्या है कि 0% टैक्सेस लगेगा। प्लस देयर इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रा स्टेट बेसिस। Then third is there is a creation of enabling environment for contract farming between the companies on one hand and farmers on the other hand. So this is the whole background behind the ordinances which came in 2020. अब ये जो present case है, this present case gets altered due to these. अब present case कैसे altered होगा तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि now is creation of new case. अब new case में क्या है कि there is farmer. Now farmer has two choices. ठीक है, दो choices है फार्मर के पास, either ही कैन टेक दिस रूट 1। अगर रूट 1 में लेगा तो देयर इज़ अगेन ट्रेडिशनल APMC मंडीज़ हैं, उनके थ्रू वापस होलसेलर और रिटेलर के पास वाला प्रोसेस सप्लाई चेन बनी रहेगी। ठीक है, द एक्ट डज नॉट एबॉलिश व्हाट APMCs अबॉलिश नहीं कर रहा है एक्ट। ठीक है, APMC विल बी इंटैक्ट, यहाँ पर APMC थी यहीं की यहीं रहेगी। बट जो APMCs का पहले इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बहुत दूर दूर तक, ठीक है, जिस भी एरिया के अंदर APMC का इन्फ्लुएंस था बहुत दूर दूर तक, वो इन्फ्लुएंस क्या है अब इस मॉडल एक्ट के बाद, ठीक है, दीज ऑर्डिनेंसेस के बाद क्या है कि श्रिंक हो जाएगा, इट विल बी कन्फाइंड टू दिस प्लेस ओनली। ठीक है, तो इधर क्योंकि अब चॉइस आ गई फार्मर के पास, दो चॉइसेस हैं, या तो रूट 1 के साथ जा सकता है या रूट 2 के साथ जा सकता है। और रूट 2 क्या होगा उसके लिए, जो हमने बात करी थी ऑर्डिनेंस सेकंड के अंदर जो फ्री ट्रेडिंग जोन्स बनाए गए हैं। और फ्री ट्रेडिंग जोन्स के अंदर क्या होगा, जो भी फार्मर अपनी प्रोड्यूस क्या फ्री ट्रेडिंग जोन्स में लेके आएगा, फ्री ट्रेडिंग जोन्स ये सारा क्या एक एग्रीगेटर के पास क्या इकट्ठा हो जाएगा, एंड दीज एग्रीगेटर्स विल देन ट्रांसपोर्ट इट टू द सुपर मार्केट्स, एंड दीज सुपर मार्केट्स आर आवर जाइंट MNCs। ठीक है, और कॉर्पोरेट्स, ठीक है, और कॉर्पोरेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यू वे। तो न्यू वे में क्या है कि दो चॉइसेस हैं, APMC है वहाँ का वहाँ, पर APMC का यू आर नाउ सीइंग दैट इट्स इन्फ्लुएंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली इसका इन्फ्लुएंस क्या रिड्यूस हो गया। पहले तो क्या है कि इसकी जो रीच थी वो बहुत दूर दूर तक एरियाज तक थी, ठीक है, जो भी उस APMC जुरिस्डिक्शन के अंदर एरियाज आते थे। मगर अब क्या है कि फार्मर के पास दो चॉइसेस तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या है 30% फार्मर्स ही अपनी प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं और मोर देन 70% फार्मर्स क्या है यहाँ पर अब ये वाला रूट चुन लें। तो न्यू केस में क्या है कि दोनों ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं। वन, देयर इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी एट वर्क, एंड सेकेंड वे APMCs, and these APMCs are mediated by government channels। ठीक है, तो ये बैकग्राउंडर हो गया। नाउ विल स्टार्ट लुकिंग एट अ गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थीम, और देखते हैं उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। आई होप द बैकग्राउंड इज क्लियर, आई होप द होल इशू इज़ क्लियर। ठीक है, बहुत ब्रीफ में बताया बट दैट इज़ द क्रक्स। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन है कि जो फार्म ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं 2020 में, फार्म ऑर्डिनेंसेस ऑल्दो पोर्ट्रेज अ प्रॉमिसिंग रिफॉर्म in agriculture sector, it still raises legitimate concerns, there are still legitimate concerns from diverse stakeholders। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फार्म ऑर्डिनेंसेस हैं दे आर अ प्रॉमिसिंग रिफॉर्म, दे आर गुड रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर लैंडस्केप, बट एट द सेम टाइम ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं दे आर रेजिंग व्हाट कंसर्न्स, ठीक है, जेन्युइन कंसर्न्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक फार्मर्स कम्युनिटी पूरी है, पॉलिटिकल अपोजिशन क्या है कि इसके अगेंस्ट आया है, वी हैव सीन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन द कंट्री स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन टैग क्या है हमारे पास, डिस्कस, दिस इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग डिस्कस है, डिस्कस के अंदर क्या देखेंगे हम, बोथ वी विल बी एक्सप्लोरिंग द पॉजिटिव्स, वी विल बी एक्सप्लोरिंग द नेगेटिव्स, एंड देन वी विल बी गिविंग अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इट्स अ 15 मार्कर, तो यूजुअली यू विल बी गिविंग 3 पेजेस।
अब देखते हैं इसके अंदर, अगेन गोइंग बाय आवर फिलोसफी ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शंस, 2 पैटर्न हैं, फर्स्ट इज़ व्हाट, सेकंड इज़ व्हाई। ठीक है, तो व्हाट के अंदर स्टैटिक, अब इसमें स्टैटिक तो क्या होगा, इट्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सिंपल एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन विल बी मोर इंपॉर्टेंट और विल बी मोर एप्लीकेबल हेयर। अब करंट अफेयर्स के अंदर कैसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट ऑल द 3 ऑर्डिनेंसेस, बट वो ऑर्डिनेंसेस के नाम ही इतने बड़े हैं कि इट विल टेक मच ऑफ ए स्पेस। देयरफॉर व्हाट वी विल डू इज़ वी विल बी गिविंग अ ब्रीफ समरी। ठीक है, जो भी ऑर्डिनेंसेस थे उनकी ब्रीफ समरी क्या है कि हम यहाँ पर दे देंगे इन आवर इंट्रोडक्शन, ताकि क्या है एक क्वेश्चन का क्लैरिटी भी हो जाएगी और उसके अंदर सारा कंटेंट भी क्या कवर हो जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के नाम लिखने लगे हम तो इट विल टेक अ मच लॉन्गर पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर हम बात करूँ तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि रिसेंटली क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फार्म ऑर्डिनेंस बिल लेके आया है, एंड फार्म ऑर्डिनेंस बिल इज़ रिलेटेड टू द की कंसेप्ट्स ऑफ फार्म इकोनॉमी। ठीक है, फार्म इकोनॉमी को क्या है कि रिफॉर्म करने के लिए क्या है कि फार्म ऑर्डिनेंस को लेके आए हैं, और फार्म इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए उस ऑर्डिनेंसेस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पर हम समरी वेज लिख देते हैं। पहला क्या है, ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ठीक है, उसके अंदर बात कही गई है ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। ठीक है, बोथ इंटर एंड इंट्रा स्टेट। ठीक है, सेकेंड इज़ प्राइस अश्योरेंस, प्राइस अश्योरेंस की बात कही गई है। प्राइस अश्योरेंस का मतलब कि मार्केट प्राइस, ठीक है, तो मिलेगी मिलेगी, मार्केट साइज पूरी है तो इट विल बी गुड। ठीक है, अदरवाइज देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एमएसपी, एमएसपी को अबॉलिश नहीं किया गया है, एपीएमसी को अबॉलिश नहीं किया गया है, बट नाउ देर इज़ अ ग्रेटर पुश टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ बाय दिस चैनल। ठीक है, देन देर इज़ मोर फोकस ऑन फार्म सर्विसेज, फार्म सर्विसेज मोर फोकस दिया गया है। देन वी हैव इंक्लूडेड द aspect of what, contractual farming in this, and then the last is stock limits on essential commodities। ठीक है, तो ये सारे क्या थे उसके फीचर्स थे, तो वी हैव ऑलरेडी combined all these features into a single paragraph like 4-5 lines, and we will be giving this introduction, and that will be more applicable as compared to writing bluntly the 3 ऑर्डिनेंसेस, बिकॉज दे आर ऑफ वेरियस, बहुत बड़ी बड़ी लेंथ के हैं वो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हम उसके फीचर्स को बता नहीं पाएंगे और वही क्या है कि बहुत हमारा स्पेस ले लेंगे। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि बोल रहा है प्रॉमिसिंग रिफॉर्म है, तो प्रॉमिसिंग रिफॉर्म इसका मतलब कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो जब बॉडी पे आएंगे तो फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द बेनिफिट्स पार्ट। ठीक है, तो बेनिफिट पार्ट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या बोल रहा है ये, इट इज़ लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ व्हाट, फ्री ट्रेडिंग एरियाज़। ठीक है, अगर आप मंडी वाले चैनल के थ्रू जाओगे, एपीएमसीज़ के थ्रू जाओगे तो वहाँ पर क्या आपको मंडी फीस देनी पड़ेगी, दे आर लॉट मैनी मिडल मैंस। ठीक है, देर इज़ कार्टलाइजेशन ऑफ पीपल हेयर, तो वहाँ पर क्या है कि प्राइसेस को क्या है कि कम होने नहीं देते हैं, ज़्यादा होने नहीं देते हैं, देयरफॉर देर इज़ लेस एफिशिएंट व्हाट, प्राइस डिस्कवरी। अगर यहाँ पर क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो प्राइस डिस्कवरी क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा प्राइसेस पे होगा, क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या है कि क्रिएशन ऑफ फ्री ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो गया है। एट द सेम टाइम जो भी यहाँ पर क्या है मिडल मैन थे इन द एपीएमसी वे, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, ठीक है, टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ मंडी फीस एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम यहाँ पर और क्या हो रहा था, कार्टलाइजेशन जो हो रहा था, ठीक है, ऑफ द ब्रोकर्स। कार्टलाइजेशन का मतलब दे यूज टू फॉर्म अ व्हाट, ओलिगोगार्की। ठीक है, ओलिगोगार्की के अंदर क्या है कि वो वापस आके वहाँ पर प्राइस को स्पेकुलेट करके और एक प्राइस को बढ़ने नहीं देते थे। तो ये जब सब चीज़ें हट जाएंगी तो नाउ देर इज़ अ अल्टरनेटिव विद द फार्मर टू गो विद द फ्री ट्रेडिंग एरियाज़, और यहाँ पर क्या है कि टैक्सेस आर 0%। तो यहाँ पर क्या है कि एफिशिएंट क्या है कि उसको प्राइस डिस्कवरी होगी, किसके लिए, फार्मर के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास इट विल क्रिएट द फिनोमिना ऑफ वन नेशन वन मार्केट। ये गवर्नमेंट की प्रेजेंट डे की फिलॉसफी भी है, और इस प्रोसेस और इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या है कि इस फिलॉसफी को क्या है कि ग्रेटर पुश मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमने देख लिया है कि इसने क्या किया है, इट कर्व्स बैरियर्स ऑन इंटर प्लस इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, वो हमने देख लिया है। प्लस एट द सेम टाइम क्या है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को भी क्या प्रमोट कर रहा है। देयरफॉर कंपनीज फ्रॉम साउथ कैन बाय एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ एंड वाइस वर्सा, तो वो भी हो सकता है। एट द सेम टाइम क्या है कि फार्मर्स के पास क्या होगा, ड्यू टू दीज कर्ब्स एंड बैरियर्स का जो हो गया है, उसके बाद फार्मर के पास क्या पॉजिटिव होगा, फार्मर्स इज ग्रेटर चॉइसेस, ठीक है, टू एक्सप्लोर इन द ओपन मार्केट। एट द सेम टाइम मार्केटिंग कॉस्ट जो हो जाएंगी,
ड्यू टू लोअर टैक्सेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर विल ट्राई टू गो टेकिंग दीज चैनल्स, और ये क्या है कि हमारी जो फिलॉसफी है कौन सी, वन नेशन वन मार्केट को और ज़्यादा पुश करेगा। ठीक है, तो हमने क्या है कि इसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को क्या है कि उनकी स्टॉक लिमिट्स क्या है कि हटा दी हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टॉक लिमिट्स को अगर हम क्या है रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, जो जाइंट कॉर्पोरेशंस हैं दे कैन स्टोर मच। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम देयर इज़ सपोर्ट ऑफ वॉट, इंटर प्लस इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन अ सीमलेस वे। तो ये पुश करेगा किस फिलॉसफी को, वन नेशन वन मार्केट को। देन अब यहाँ पर क्या है कि इट विल लीड टू प्रमोशन ऑफ FPOs। अब हमने देखा है कि यहाँ पर कौन सा फ्रेमवर्क आ रहा है। ठीक है, फ्री मार्केट ओपन में तो क्या है कि कंपनीज विल बी ऑन वन हैंड, बिग कंपनीज विल बी ऑन वन हैंड एंड फार्मर विल बी ऑन दी अदर। ठीक है, तो फार्मर क्या है कि अपना पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इट विल फॉर्म मोर एंड मोर FPOs, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, टू गिव मोर वेटेज टू इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि MNCs के अगेंस्ट में फार्मर विल ऑल्सो ट्राई टू स्ट्रेंथन इट्स इमेज। तो इस इमेज को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है कि मोर एंड मोर फार्मर्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म मोर FPOs। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो जो FPOs का जो फिनोमिना था विच गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू इंक्रीज, विच गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इन ऑल दीज ईयर्स, वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था। बट क्योंकि अब कंपनीज हैं डायरेक्टली क्या है कि परचेज करेंगे फार्मर्स से, तो फार्मर्स क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन MNCs से अच्छा नेगोशिएशन करने के लिए मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ FPOs विल बी हैपनिंग। एट द सेम टाइम क्या है कि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो गया है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर चीज़ें आएंगी, तो क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स विल नाउ मोर इंटरेस्टेड। पहले प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन था, ब्यूरोक्रेटाइजेशन था प्रोसेस का। ठीक है, बट अब क्या है कि वो सब हट गया है या कम हो गया है, या सिर्फ APMC मंडी तक की क्या है रिस्ट्रिक्ट है। APMC की जो बाउंड्री है उसके बाहर क्या है कि वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब क्या है कि अट्रैक्ट करेगा क्या, मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जब मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, इट विल इम्प्रूव वॉट, इंफ्रा। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स विल इंक्रीज द इंफ्रा ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसमें क्या करेंगे वो, वेयर हाउसिंग facilities, grading facilities, then cold storage facilities, and also the modernization of entire food supply chain। ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट को हम रिलेटिवली क्या है कि 40 to 50% हमारा वेटेज देंगे, क्योंकि क्या है कि डिस्कस में बोथ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इक्वल मैनर में हमें डिस्कस करने हैं। सेकंड है इश्यूज़ रेज्ड, पर इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज कि क्या है कि जो ऑर्डिनेंसेस पास हैं, ऑर्डिनेंस सिंपल सा नाम है, ऑर्डिनेंसेस क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट गवर्नर क्या पास कर देता है, तो उसमें क्या है कि लैक ऑफ कंसल्टेशन हुई है। ठीक है, डाइवर्स स्टेक होल्डर से क्या है कि ओपिनियन नहीं मांगा गया है। एज अ रिजल्ट क्या है कि सेवरल इशूज़ हैव बीन रेज्ड। फर्स्ट इशू क्या है कि फेडरल एंगल को इसमें चैलेंज हुआ है। कैसे हुआ है कि हम देख सकते हैं कि क्या है, इसमें जो APMC का चैनल था उसमें क्या है कि एक अल्टरनेटिव निकाल दिया है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि बाईपासिंग हो गई है किसकी, APMCs की इन अ वे। ठीक है, और APMCs कौन रेगुलेट करता है, स्टेट। ठीक है, एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर इज़ व्हाट, एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, तो उस पर क्या है कि सब स्टेट्स की येस को माने बिना, ठीक है, द गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बॉट द ऑर्डिनेंस। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। एट द सेम टाइम क्या है कि ये जो एक्ट हैं या ऑर्डिनेंस हैं, इट गिव्स मोर पावर टू सेंटर के पास क्या ज़्यादा पावर देता है ये। ठीक है, टू व्हाट, टू इंक्रीज द फर्दरेंस, टू इंक्रीज द इम्पैक्ट और फर्दरेंस ऑफ दीज एक्ट्स। ठीक है, इन एक्ट्स को क्या है कि अच्छे से ग्राउंड पे वर्क करने के लिए क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है टू गिव डायरेक्टिव्स टू द स्टेट्स टू फॉलो इट। ठीक है, तो ये सिंपल फर्स्ट रहेगा कि फेडरल एंगल को क्या कि डिस्टॉर्ट कर रहा है। इट इज़ मेकिंग द फेडरल एंगल टू डिस्टॉर्ट और टू बिकम मोर असिमेट्रिक। ठीक है, असिमेट्रिक का मतलब मोर पावर इज नाउ बीन टेकन ऑन एग्रीकल्चर मैटर्स बाय द सेंटर एज कम्पेयर टू द स्टेट, ऑल्दो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देन सेकंड क्या है कि एप्रीहेंशंस विद रिस्पेक्ट टू क्या है, MSPs। अब बहुत सारे फार्मर्स क्या हैं कि ये एप्रीहेंशंस कर रहे हैं कि क्या पता फ्यूचर में MSP क्या है बंद तो नहीं हो जाएगी। इसका रीज़न क्या बोल रहे हैं वो, कि क्योंकि यहाँ पर ट्रेड जोन्स हैं हमारे,
फ्री मार्केट के, जहाँ पर क्या है कि 0% क्या है कि टैक्सेस हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पर APMCs हैं, यहाँ पर क्या है बहुत सारी फीसेस हैं, ठीक है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब की भी क्या है बहुत हालत और कंडीशन बुरी है। तो होगा क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे विल इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। तो होगा क्या कि द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ APMCs विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, ठीक है। तो APMCs की कॉम्पिटिटिवनेस क्या है बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जब APMC क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि इट विल श्रिंक, ठीक है, श्रिंक होता होता बहुत छोटा हो जाएगा और हो सकता है एक टाइम बाद APMCs की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है। जब APMCs की डेथ हो जाएगी तो गवर्नमेंट के पास क्या है कि एक स्पेकुलेशन आ जाएगा या फिर गवर्नमेंट के पास एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा कि वी कैन ऑल्सो रिड्यूस और वी कैन ऑल्सो स्टॉप द प्रोसेस ऑफ गिविंग MSPs, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी MSPs को कैसे दिया जाता है, MSPs आर बीइंग गिवन वाया द चैनल ऑफ APMCs, ठीक है। कि आप जो भी प्रोड्यूस फार्मर लेके आता है तो जो भी डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं अंडर MSP, वो क्या है कि डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ क्या है कि APMC मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के सर्कुलर्स के थ्रू वो लेना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। बट जब APMCs ही नहीं रहेंगे तो वो MSP की कमोडिटीज़ को कहाँ पर परचेज कर पाई गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा आइदर टू स्टॉप और रिड्यूस MSPs, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे जो भी फार्मा कम्युनिटीज़ हैं उनमें एप्रीहेंशंस हैं कि MSP तो आने वाले टाइम में बंद नहीं हो जाएगी, एंड देयर इज़ अ जेन्युइन कंसर्न बिकॉज दैट माइट कैन हैपन, ठीक है। नेक्स्ट है वो क्या है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन द नॉन APMC मंडीज़। मतलब जो फ्री ट्रेड जोन्स हैं उसमें क्या है कि देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आस्पेक्ट्स। अब उसमें क्या फ्री मार्केट फिलोसफी के थ्रू उसको स्टार्ट कर दिया है। तो मैनी प्लेयर्स और मैनी कम्युनिटीज़ आर सेइंग दैट कॉरपोरेट इंटरेस्ट जो है उसको क्या है कि प्रेफरेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स इंटरेस्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर होगा क्या कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट होगा तो दीज कॉरपोरेट्स हैव गुड बैटरी ऑफ लॉयर्स, ठीक है, दे कैन ईजिली फाइट द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट जो फार्मर कम्युनिटी क्या है कि रिलेटिवली वीक है तो क्या होगा, एंड देयर इज़ नो गुड मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल और रेगुलेशन। तो होगा क्या कि फार्मर कम्युनिटीज़ विल बी एट अ वीकर आस्पेक्ट, ठीक है। तो फार्मर कम्युनिटीज़ क्या वहाँ पर नेगोशिएशन के अंदर क्या है कि अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, दे वोंट बी एबल टू फाइट केसेस इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव द फाइनेंशियल और द मनी पावर टू डू दैट। एट द सेम टाइम व्हाट इट विल डू इज़ इट विल इंक्रीज द क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक, क्रोनी कैपिटलिज्म को क्या है कि इंक्रीज़ कर देगा। एग्जांपल क्या है कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े हेड्स हैं दे माइट गिव टेंडर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू बिगर जाइंट्स लाइक रिलायंस, अडानीज, अंबानीज एक्सेट्रा। तो इट माइट इंक्रीज वॉट क्रोनी कैपिटलिज्म। मान लो जियो मार्ट क्या है, जियो मार्ट कैन टेक बिग टेंडर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग फ्रॉम बिगर एंड लार्जर एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। एट द सेम टाइम जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ नॉन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, ठीक है। अब मार्केट कंडीशंस क्या है कि नॉन फेवरेबल कैसे हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जो हमारे पास रिटेल प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, रिटेल प्राइसेस हैं उसमें देखा गया है कि देयर इज़ रेगुलर इंक्रीज, ठीक है, वर्सेस द होलसेल प्राइसेस। होलसेल प्राइसेस जो हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के उसमें इतना जंप नहीं आया एज़ कम्पेयर टू द रिटेल प्राइसेस, ठीक है। तो एक ही हो गया। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग दोज एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, वो क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या है कि इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिटेल में जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ नॉट पास ऑन टू द होलसेल प्राइसेस, एंड दिस होलसेल प्राइसेस विल देन नॉट बी पास टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तो फार्मर्स क्या है कि फिर भी क्या है कि लो एंड पे रहेंगे, कहाँ पे, इन गेटिंग द एक्चुअल प्राइस रियलाइजेशन ऑफ देयर कमोडिटीज़। और एट द सेम टाइम देर इज़ वॉट, देर इज़ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स के लिए जो हम बता रहे थे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए जो एक्ट लेके आया इट माइट नॉट प्रूव फ्रूटफुल इन रियल सेंस और ऑन द ग्राउंड। ये हो गया। अब एग्जांपल इसके अंदर बहुत अच्छी केस स्टडी है कि बिहार, ठीक है, बिहार टोटली एबॉलिश्ड व्हाट APMCs, बिहार एबॉलिश APMCs इन 2006, ठीक है। एंड ये देखा गया कि बिहार ने जब APMCs एबॉलिश करी तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट था वो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, बिहार की इनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को देख के क्या है कि नहीं आया।
तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं आया। एज रिजल्ट क्या देखा गया कि जो फार्मर्स थे, ठीक है, दे वर गेटिंग मार्केट प्राइजेस इन द ओपन मार्केट, ठीक है, वेल बिलो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एमएसपी। मतलब एमएसपी से भी क्या है कि दे वर गेटिंग लोअर प्राइसेस इन द ओपन मार्केट फॉर देयर एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूस। तो बिहार का क्या है कि वी कैन गिव एग्जांपल दैट बिहार एबॉलिश्ड एपीएमसी इन 2006 एंड एज रिजल्ट ऑफ विच जो एक्चुअल प्राइस रियलाइजेशन था इन द ओपन मार्केट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस वॉज लेसर दैन द एमएसपी इटसेल्फ, ठीक है। तो एमएसपी क्या है कि उस केस में बेटर था, एमएसपी वॉज अ श्योरिटी फॉर द फार्मर, बट वहाँ पर वो नहीं हो पाया। और इसका फिर फाइनल कंक्लूजन अगर हम दें तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड गिव व्हाट सर्टेन क्लैरिटी, ठीक है, ताकि प्रोटेस्ट और जो भी अपोजिशंस हो रही हैं वो इमीडिएट एक्शन से क्या है कि कम हो जाए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कि इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अगर हम फ्री मार्केट ट्रेडिंग एरियाज़ को लेके आ रहे हैं देन ऑल्सो वी नीड टू गिव व्हाट, वी नीड टू गिव मोर फंडिंग टू एपीएमसीज। अगर एपीएमसीज को हम क्या ज़्यादा फंडिंग देंगे तो एपीएमसीज की क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी देन दे विल ऑल्सो गिव अ गुड कॉम्पिटिशन टू द प्राइवेट सेक्टर, जो कि यहाँ पर आ गया है इस ऑर्डिनेंस के बाद, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि फंडिंग करो एपीएमसीज की, ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर जो प्रोसेस है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ईजी और एसेसिबल हो जाए, ताकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो जाए और प्राइवेट सेक्टर को अच्छा कॉम्पिटिशन मिले फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। तो प्राइस डिस्कवरी हो वो क्या हो, प्राइस डिस्कवरी क्या मतलब कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस लेके आ रहे हैं उनकी जो प्रोड्यूस है उसकी प्राइस डिस्कवरी क्या हो, ऑप्टिमम हो, ठीक है, दैट शुड बी मोर बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रोड्स, देन कोल्ड स्टोरेज, देन अदर सप्लाई चेन मेजर्स, देन अदर सब्सिडीज एक्सेट्रा, ठीक है। देन नीड टू एम्पावर व्हाट स्टेट फार्मर कमीशंस, ठीक है, स्टेट फार्मर कमीशन जो है उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन बोथ द केसेस, इन केसेस ऑफ एपीएमसीज एंड ऑल्सो इन द केसेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर के अगर हम जा रहे हैं तो स्टेट फाइनेंस फार्मर कमीशन अगर क्या होगी, एम्पावर्ड होंगी, ज़्यादा पावर्स होंगी, तो दे कैन बी अ गुड पार्टी इन डीलिंग विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन इन अ कंसेंशुअल बेसिस, ना कि एक सेंटर इन टॉप टू बॉटम मैनर में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप वॉट एवर द थिंग्स आर टेकन, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। सो दिस वॉज द डिस्कशन रिगार्डिंग फार्म बिल और फार्म ऑर्डिनेंसेस, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम एन एक्ट, ठीक है। सो वी हैव सीन द बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड के अंदर व्हाट वाज द फार्म ऑर्डिनेंसेस 2020, उसका प्रोसेस क्या था, पहले पोजीशन कैसी थी, ये सिचुएशन कैसी थी, फार्म ऑर्डिनेंसेस ने उसको कैसे चेंज किया, और जो न्यू नॉर्मल है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस या ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन लिया उस क्वेश्चन के अंदर इट इज़ आस्किंग बोथ द पॉजिटिव्स एंड एज वेल एज द नेगेटिव्स, तो मैं दोनों को क्या है कि एक्सपोज किया एंड देन वी रोट अ गुड एंड अ वे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। So this is how you can write your answers, ठीक है। If you like the video, do share it, do like it. Also join our Telegram channel and YouTube channel for further updates. Thank you and have a nice day.